Now, yesterday I finished Fleming's left hand rule, and now we have to discuss Fleming's right hand rule. And Fleming's right hand rule is used for, you know, for knowing the direction and magnitude of induced EMF. Induced EMF. This is particularly used for generator, right? And this is related with the motion of the conductor. And here we say that when conductor is moved inside the magnetic field, then an EMF is induced into the conductor, right? So this is the case, and this is normally the case of generator. So we have got two things, that is motor, where Fleming's left hand rule works, and here it is generator, and here Fleming's right hand rule governs the operation of generator, right? It will tell us the magnitude and direction of the induced EMF in the conductor when it is rotated or it is moved inside the magnetic field, right? So just we should go through it, and this is for class 10th and 12th both. Class 10th and 12th. For class 12th it is revision, and class 10th it is for their course. Okay, so now Fleming's right hand rule. Right hand rule. So this is the case, Fleming's right hand rule. Now, first point, it is used for the generator, right? It is used for the generator. And what happens in generator, where a conductor is moved or rotated inside a magnetic field, B, with velocity V, then an EMF is induced in the conductor. So this is the case, right? So when a conductor is moved or rotated inside a magnetic field B with velocity V, and EMF is induced in the conductor, right? So this is the case, and E is equal to, we say, BVL sine theta volt, right? Volt is the unit, right? And theta is the angle between the velocity and the magnetic field. Between V and B. Now, what we can write here? Second point. So this is first point, and second point is now the work of, because we have to know, or we have to understand the direction of EMF or induced current, where it is flowing, left to right, right to left, up to down, or down to up. What is the direction of current, induced current? So for knowing the direction of induced current, here it requires the use of Fleming's right hand rule. Now here it will be used, Fleming's right hand rule. So what happens? I'm just so what happens here? This is second point. Now we have this right hand rule. That's why we call it right hand, Fleming's right hand rule. This is right hand rule. This is right. This is again indicating the direction of magnetic field. This is indicating the direction of the motion of the conductor, and this middle finger indicates the direction of induced current. This middle finger. Okay, fine. Of right hand, mind it. So to know the
direction of induced current in the conductor, we keep first finger, middle finger and thumb of right hand mutually perpendicular, like this. This is the case, like this. You can see this is thumb, this is first finger and this is middle finger, like this. This is the way. Okay, we keep first finger, middle finger and thumb of right hand mutually perpendicular. So thumb indicates, where thumb indicates the direction of motion of conductor, right? First finger here also, first finger indicates the direction of magnetic field, B, and thumb, first finger and middle finger indicates the direction of induced current. So thumb indicates the direction of motion of conductor, first finger indicates the direction of magnetic field and the middle finger indicates the direction of induced current, like this. Okay, so now ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, कह दिया, पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया, खत्म, फिनिश। जब तक आप इसको परफॉर्म करके नहीं देखोगे, इसको पेपर पर यूज करके नहीं देखोगे, तब तक आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो आई विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स हियर और फ्यू cases here to get the direction of induced EMF or induced current. Fine. Now, example first की हम बात करते हैं। Example first 1, ठीक है। Okay, so first of all we take magnetic field. मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये सर डायरेक्ट उठा के N और S लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। हम यहाँ क्या करते हैं, ये N और S प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास तरीका है। यू विल टेक अ मेटालिक फॉर्मर, कोर लेंगे आप सॉफ्ट आयरन का, और यहाँ पर आप इसको रैप करेंगे वाइंडिंग को, राइट? ये वाइंडिंग को आप रैप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये आपका करंट सर्कुलेट करेगा। कैसे करंट सर्कुलेट करेगा? यहाँ से प्लस माइनस, ये आया, यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर आपके निगेटिव टर्मिनल पर वापस आ गया। तो दिस इज द वे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऑब्वियस है, आप बोलोगे कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम पता करेंगे? सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप इसको ऐसा करो, ये देखो, ठीक है, ये आपकी वायर गई। अब क्या होगा, यहाँ से करंट गया, अब उधर से वापस आएगा, यानी कि यहाँ पर ये आपका डॉट होगा, ये वापस आया नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये नीचे आया। फिर आपका, अगर हम इसको इस तरीके से डायरेक्शन अगर लेना चाहें, देखिए ये आपका बैटरी है, इस बैटरी से करंट निकला, ऐसे गया, ठीक है,
इसको आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ से करंट निकला, ये ऊपर की तरफ गया, ऐसे गया, अब यहाँ से नीचे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये ऐसे गया, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमने वायर थोड़ा सा ज़्यादा ये कर दिया, ऐसे रख लो आप, ठीक है, ऊपर आया और फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ऐसे गया, यूँ ऐसे गया, अब यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर आके और ये ऐसे आता हुआ निकल जाएगा, ठीक, यहाँ तक आ जाएगा, ये आई, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये अपने आप यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, ये, ठीक है। सो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। तो अब हमने क्या किया कि हमने आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझाना है, तो हमने आपको इसको नहीं समझाया, हमने आपको सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट समझा दिया आपको कि ये आपका फील्ड है। अब इसको एक और जरा सा नीट एंड क्लीन तरीके से मैं आपको बना दूं, एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं, देखो। सबसे पहले आप एक पोल शू लेते हैं इस तरीके से, ऐसे लिया, दिस इज कॉल्ड पोल शू, ठीक। और ये माइंड इट कि ये ऐसे रहता है, ये गोल रहता है, पूरा मिला हुआ रहता है, ऐसे यूँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। ये पूरा आयरन पार्ट रहता है, पूरा का पूरा आयरन पार्ट। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप ऐसे ये लिया और उसके बाद फिर ये आपने इसको ऐसे यहाँ पर मिला दिया और इससे आपने कनेक्ट कर दी बैटरी को, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आप इसका स्टैंड दे दो, ये स्टेटर है आपका, प्लस माइनस। ये जब करंट यहाँ से सर्कुलेट कर, बैटरी आपने लगा दी, बैटरी लगा दिया, जब करंट सर्कुलेट करेगा आपका ये, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप इसके ये एज्यूम कर लो कि ये पहला वाला टर्म जो नीचे से जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट क्लियर, ये नीचे से जा रहा है, तो ऊपर से आपका एक करंट वापस आएगा ऐसे, तो ये करंट आपका यहाँ आएगा, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये करंट आपका नीचे की तरफ आएगा, फाइन। अब ये यहाँ से ऐसे चला गया, फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेते हैं, फिर ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये नीचे आएगा ऐसे, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल को अगर यूज़ कर लें, वी आर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, बिकॉज ये उंगलियां क्या बता रही हैं, उंगलियां बता रही हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये फ्लक्स, ये अंगूठा क्या बताएगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने लगा, तो एक नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल बन जाएगा। दिस इज द केस। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए हम इस पार्ट को भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि वी आर टेकिंग ऑलरेडी अ मैग्नेट, ठीक है। उस मैग्नेट को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एक आयरन फ्रेम लीजिए, उस पर वाइंडिंग रैप कर दीजिए, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी में करंट फ्लो करेगा, आपका मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको, ये तो थंब रूल हो गया, लेकिन अगर आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो आप उस मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक निडल ले आकर रख दीजिए, निडल की डायरेक्शन बता देगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है, ठीक है। आइए, सो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ये रख दिया, अब एक हमने लिया एक ऐसा रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, सब घूमने के लिए इसको फ्री छोड़ दिया और यहाँ पर हमने रख दिए एक कंडक्टर यहाँ रख दिया, 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 फाइन। कैसे मूव करेगा ये मूव करेगा, ऑब्वियस है, ये इसकी वेलोसिटी होगी ए, ये इसकी वेलोसिटी होगी बी, इसकी वेलोसिटी होगी सी और ये इसकी वेलोसिटी होगी डी। मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा आपको, चारों के चारों केस क्लियर करता हूँ यहीं पर, आपको फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए यहाँ देखिए, अगर मान लिया जाए, ऑब्वियस देखो जनरेटर है, जनरेटर के केस में एक बात याद रखना कि जनरेटर में हम एक्सटर्नल मूवमेंट देते हैं, बात हमेशा रखिएगा। हम जनरेटर में एक बेसिक डेफिनेशन आता है कि वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारा जनरेटर होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पर हम इनपुट देते हैं, चाहे आप हाथ से दे दें, चाहे इंजन लगा दें, चाहे आप मोटर के साथ उसके शाफ्ट को इसको कनेक्ट कर दें मोटर के साथ, तो जैसे जैसे मोटर घूमेगा वैसे वैसे ये घूमेगा और आपको आउटपुट मिलता जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी जो होती है हम उसको एक्सटर्नली मूव करते हैं और इसको हम कहते हैं प्राइम मूवर, इसको प्राइम मूवर कहते हैं।
अब आप बोलोगे कि बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशंस में क्या होता होगा, वहाँ भी यही होता है। जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करेंगे, पानी उबालेंगे, है ना, पानी उबालेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम को हाई प्रेशर पर ले आएंगे और उसको टरबाइन के ब्लेड पर गिराएंगे। तो इतनी प्रेशर फास्ट होती है कि आपका वो टरबाइन घूमने लगता है और जिससे कि आपका ये वाला पोर्शन मूव करने लगता है। तो जैसे ही मूव करेगा, अब और मैग्नेटिक फील्ड आपने बना रखी है पहले से, एक्सटर्नल ईएमएफ देकर, बैटरी लगाकर, और आपको जनरेटर मिल जाता है। वहाँ भी यही काम करता है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई बड़ा ये है। अगर आप एक साइकिल के डायनामो में देखा होगा आपने कि साइकिल के पीछे लोग एक मूविंग बॉडी कनेक्ट कर देते हैं, जैसे पहिया घूमता है वो मूविंग घूमता रहता है और बीच में मैग्नेट के बीच में उस कॉइल को लटका देते हैं, तो आगे आपका एक बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहिया घूमता है उसके साथ हमने कॉइल को अटैच कर रखा है, वो कॉइल घूमता है और एक परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं, तो उस परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल घूमने लगता है, क्या होगा, जनरेटर बन जाता है। आइए, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, जहां हम पानी गिराकर पानी को स्टोरेज करते हैं, हाई हाइट पर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को ऊपर से गिराते हैं, वो भी टरबाइन के ब्लेड पे गिरता है। तो इतनी ज़्यादा, अब आप mgh पढ़ा होगा आपने, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, तो mgh, तो उतनी एनर्जी से अगर आप गिराओगे वाटर को ऊपर से नीचे टरबाइन ब्लेड पर, टरबाइन मूव करेगा तो फिर आपकी ईएमएफ आ जाएगी। तो कहीं भी बड़े से बड़े जनरेटिंग स्टेशन हो, छोटे से छोटे आपका जनरेटर हो, कहीं भी, अब ऑटोमोबाइल की बात कीजिए तो ऑटोमोबाइल में इतना बड़ा जनरेटर होता है जिससे कि आपकी सारी हेडलाइट वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, आपका स्टार्टर वगैरह सब काम करता है। वहाँ भी यही कंडीशन होती है, आपकी गाड़ी मूव करते रहती है, बैटरी आपने रखा हुआ है सपोर्ट सिस्टम में, आपकी गाड़ी मूव करते रहती है, पहिया घूमता रहता है और वो ईएमएफ बन के और आपका बैटरी चार्ज होता रहता है। ठीक है, बैटरी चार्ज हो गया और आप फिर अपना चलते रहे, आप फिर चलते रहेंगे। बैटरी अगर जहाँ डाउन होने की बात आती है तो आपका पहिया घूमता रहता है। देखा भी होगा आपने कि जब आपकी बैटरी डाउन रहती है तो किस तरीके से उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, मैकेनिक बोलता है कि भैया जाओ 2 किलोमीटर से चला के लाओ, बैटरी चार्ज हो जाएगी। रेगुलर फिनोमेना है, पहिया घूमता रहेगा, यानी कि आपको जब पहिया घूमता रहेगा तो आपको यूनिफॉर्म आपको वेलोसिटी मिलती रहेगी, उसमें कॉइल को घुमाते रहो, पावर जनरेट होती रहेगी, है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई गाड़ी खड़ी है, उसकी हेडलाइट आप ऑन कर दो, 1 घंटे में वो बंद हो जाएगी, ना तो गाड़ी स्टार्ट होने की ना कुछ, फिनिश, डेड, कुछ नहीं होगा। वो गाड़ी आपके लिए यूजलेस है, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, यूजलेस है जब तक उसकी बैटरी फिर से आप चार्ज ना करके फिर से उसका स्टार्ट ना करो। लेकिन वही गाड़ी अगर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर कॉन्टिन्यूस अगर जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हेडलाइट ऑन है, फैन ऑन है, एसी ऑन है, म्यूजिक सिस्टम ऑन है, लाइट ऑन है, सब कुछ ऑन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आपकी टायर घूमते रहती है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपका जनरेटर जो है वो पावर जनरेट करता रहता है, और जनरेटर पावर जनरेट करते रहता है जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है और आपके हेडलाइट्स वगैरह को भी सप्लाई होती जाती है। ठीक है, तो यही है फिनोमेना, यही है इंजीनियरिंग जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ आइए इस बात पे हम अगर ज़रा हम देखें तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये चला गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। मैंने कहा कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, है ना, वेलोसिटी देखिए यहाँ पर, इसमें होगा नहीं होगा। हम कंडक्टर ए की बात करते हैं, कंडक्टर ए की बात करते हैं, कंडक्टर ए, E इज इक्वल टू BVL साइन थीटा। हमें डायरेक्शन भी पता करना है और हमें ये भी पता करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये आपके B की डायरेक्शन है और ये कहाँ जा रहा है, ये V की डायरेक्शन है। तो B और V के बीच की डायरेक्शन कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। देखिए दोनों अपोजिट जा रहे हैं, 180 डिग्री होगी। ठीक है, पहला तो क्या मिलेगा आपको, EVBL साइन 180 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि कंडक्टर ए में कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आइए क्यों नहीं होगा, आइए यहाँ पर देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको बी और वी परपेंडिकुलर चाहिए। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, सॉरी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है तो आपका ये मोशन है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 180 डिग्री पर आ गए, जबकि B और V के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं आया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फाइन,
आइए कंडक्टर बी की बात करते हैं। देखिए तो कंडक्टर बी की बात करते हैं। अगर हम कंडक्टर बी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की आ गई, इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी नीचे की तरफ आ रही है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये चला गया, वेलोसिटी आपकी नीचे आ रही है, तो ये फिंगर क्या, मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि जो आपकी इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, बी वी एल साइन 90 एंड दिस विल बी इक्वल टू बी वी एल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर ईएमएफ इतनी मिलेगी आपको, और डायरेक्शन क्या होगा ईएमएफ का, तो बाहर की तरफ, यानी कि इंड्यूस करंट आपका बाहर की तरफ फ्लो करेगा। फाइन, आइए सी की बात कर लें। अब यहाँ पर सी देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ये बी की डायरेक्शन होगी और ये वी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो कंडक्टर सी की बात कर लेते हैं हम। दिस इज कंडक्टर सी। अब देखिए V और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, जबकि इनको होना क्या चाहिए, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगी, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, बी वी एल साइन 0 डिग्री, वैल्यू कितनी आएगी 0 वोल्ट। इसका मतलब कि इसमें भी ईएमएफ नहीं होगा, किसमें, कंडक्टर सी में भी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और कोई भी आपका इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा। फाइन, क्योंकि भाई जब तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तब तक आपका इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर सी बात है, पहले ये आएगा और उसके बाद ही आपका आई आएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। इंड्यूस करंट जो होती है आई इज इक्वल टू इंड्यूस करंट एंड दिस इंड्यूस करंट इज इक्वल टू ई बाई आर। याद रखिएगा, सीधी सी बात। नाउ अब हम डी पर चलते हैं। डी को देखिए जरा बहुत बढ़िया से देखिए, कंडक्टर डी, दिस इज योर कंडक्टर डी, है ना। देखिए यहाँ पर कंडक्टर डी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे चलेगी और आपका जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में 90 डिग्री मिल गया, और ये हमारा करंट, ये वाला करंट है, ये कहाँ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये तो हमको उधर लेकर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी ऊपर चली गई, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर बता दी ऐसे चला गया। तो अब करंट किधर जाएगा, करंट हमारा इस तरफ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस होगी। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिलेंगे, और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगा और यहाँ से करंट आपका अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम E की क्या वैल्यू लेंगे कंडक्टर डी में, E इज इक्वल टू वी वी एल एंड साइन 90 डिग्री, सो दिस विल बी वी वी एल वोल्ट। यानी कि आपको सेम वोल्टेज यहाँ भी मिला, सेम मैग्नीट्यूड का वोल्टेज और करंट मिलेगा यहाँ भी, और सेम मैग्नीट्यूड का वोल्टेज आपको यहाँ भी मिलेगा। फाइन, सो I इज इक्वल टू इंड्यूस करंट, I इज इक्वल टू E बाय R। आ गया, समझ में आ गया। सो दिस इज योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको इस तरीके से याद रखना होगा, इस तरीके से समझना होगा। ये 10th वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और 12th वालों के लिए तो इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, फाइन, सो दिस इज योर केस। क्लियर, आइए एक दो बातें और कर लें, एक दो एग्जांपल्स और देख लें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया ऐसे, और एक इसमें कंडक्टर हम रख दिया ऐसे ही, कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर आ गया इसमें ऐसे। ठीक है, अब ये कहा गया आपसे कि एक बार हम, सबसे पहले तो हम एक पार्ट ये करते हैं कि हम इस कंडक्टर को सिर्फ रख देते हैं, मूव ही नहीं करते हैं, सिर्फ यहां पर हमने रख दिया। क्या इंड्यूस ईएमएफ होगी, होगी, E इज इक्वल टू 0 होगी। क्यों, क्योंकि व्हेन V इज इक्वल टू 0 E विल बी इक्वल टू 0। अगर आपने इसको मूवमेंट नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया कि नो मूवमेंट, यानी कि नो मूवमेंट आपने दिया, यानी कंडक्टर को आपने मूव ही नहीं करा, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं होगी। फाइन, सेकेंड पार्ट में आपने क्या किया कि कॉइल इज मूव्ड अप एंड डाउन
एट हाई स्पीड क्या होगा, देन इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, अगर हाई स्पीड पे आप अगर मूव अप डाउन कीजिएगा हाई स्पीड पर तो क्या होगा, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड है ही। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपने हाइट यानी कि वेलोसिटी आपने ऐसे रखा, इसका परपेंडिकुलर रखा, दिस इज बी, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, आपको मैग्नेटिक मिलेगा, यानी कि E विल बी इक्वल टू बी वी एल साइन 90। ठीक, यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। फाइन, आपने कैसे मूव किया था, ऐसे अप डाउन, मैग्नेटिक फील्ड में अप डाउन आपने मूव किया था, राइट। आइए थर्ड केस लेते हैं। अगर आपने इसी कॉइल को, इसी कंडक्टर को ऐसे मूव किया और ऐसे लेफ्ट राइट इस डायरेक्शन में अगर मूव किया तो क्या हमको ईएमएफ मिलेगा। अगर हमने वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट दिया, कभी इधर लेकर गए, कभी इधर लेकर गए, कभी इधर, तो मिलेगा ईएमएफ, नो, ई विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इसकी सेम डायरेक्शन, यहाँ पे थीटा है तो 0 डिग्री है और यहाँ पर या तो 180 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ बन जाएगा, इसके लिए आपको 180 डिग्री हो जाएगा, बी और बी के बीच की एंगल 180 डिग्री, सो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, वाई, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ईएमएफ आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, फाइन, यानी कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोक दिया ले जाके तब भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, अगर पैरेलल मूव कर दिया तब भी नहीं होगी। आपको क्या मूव करना है, परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अपने वायर को मूव करना है, तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्लास 12 पर, बिकॉज क्लास 12 वालों को बहुत कुछ अभी पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। थैंक यू।